थर्ड क्लास एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में जो आती है वो है एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स में फर्दर सब डिवीजन है जिसमें पहला क्लास है एंथ्रासाइक्लिन। एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में एंथ्रासिन न्यूक्लियस होता है, और एंथ्रासिन न्यूक्लियस क्या होता है, तो हम जब 3 बेंजीन रिंग को एक साथ फ्यूज़ कर दें तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं एंथ्रासिन न्यूक्लियस। लाइक दिस। ये होता है एंथ्रासिन न्यूक्लियस। बट एंथ्रासाइक्लिन्स में एक और रिंग होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग, जो यहाँ पर फ्यूज रहता है, चौथा रिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये कहलाता है टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस। और इस टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस में ये जो रिंग है इसको हम बोलते हैं ए रिंग, ये है बी, ये है सी और ये है डी। नाउ एंथ्रासाइक्लिन के अंदर जो सी रिंग है, इस सी रिंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ से मिसिंग है और इनकी जगह इस सी रिंग में यहाँ पर आ जाता है ऑक्सो ग्रुप और यहाँ पर भी आ जाता है ऑक्सो ग्रुप। और यहाँ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। नाउ अब इस रिंग का नंबरिंग जो है वो नंबरिंग शुरू होता है, अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग शुरू होता है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरीके से। नाउ एंथ्रासाइक्लिन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में 2 पोर्शन होते हैं। ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है ए ग्लाइकोन, और ए ग्लाइकोन फ्यूज रहता है ग्लाइकोन से। तो यहाँ पर जो ए ग्लाइकोन है वो ए ग्लाइकोन में कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, वो हैं 4th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप और 6 एंड 11 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। नाउ ऑन दिस 9th पोजीशन here on this 9th carbon there is a presence of COR moiety, and here again a hydroxy group is present which is below the plane, and this C double bond OR group, this R group is present above the plane. Now hold this ring is actually a glycone portion. What? A glycone. So where is the glycone moiety? So glycone moiety is attached to this 7th carbon like this.
like this. So this is your glycone moiety. Glycone means sugar moiety. So this is your protonated L-donosamine. Donosamine. So this is your protonated donosamine. Now the different example of the drugs which comes under this class anthracycline is daunorubicin. Daunorubicin. And daunorubicin have at this R functional, at this R position, daunorubicin have what? Methanol, CH2OH. So this is the structure of your daunorubicin. And if I remove this hydroxyl group from this position and convert this CH2 into methyl group, then this drugs become what? Doxorubicin. What? Doxorubicin. So this is all about your anthracycline antibiotics. Now there is another second subclass of antibiotics in which we have put various different antibiotics. So these different antibiotics are categorized under this miscellaneous class, and the important member of this miscellaneous class is example actinomycin D, which is also known by the name dectinomycin. Actinomycin D or dectinomycin. Now this actinomycin is a peptide containing antibiotic. So what is the structure of this actinomycin D? So actinomycin D have phenoxazone ring in its structure. So phenoxazone. So this is your phenoxazone nucleus at this position and at this position. Phenoxazone, so ozone in place of ozone there is nitrogen, and here oxygen, phenoxazone, oxygen. Now the first ring is your benzene, the third ring have this type of double bond arrangement, and at this position there is methyl group, here also a methyl group. Now this is called phenoxazone, so it have ketone functionality. So here is your ketone functionality, and at this position there is amine group. So this ring is called phenoxazone ring. So numbering of this ring begins from this position: first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and your 10. Now at first and ninth position there is a presence of this carbonyl group, and on this carbonyl group is present
R and R dash. So what is this R and R dash? This both R and R dash are your peptides. Means these are structure made up of amino acids. A pentapeptide is present over here. So this is all about your actinomycin D or dactinomycin. But there are some more examples of drugs which comes under this antibiotic class, like bleomycin and mitomycin C. So these are all miscellaneous antibiotics which are used in the treatment or in the management of cancer. Now we will move on to the next class. तो नेक्स्ट क्लास आता है क्लास नंबर 4, और क्लास नंबर 4 में हमने इंक्लूड किया है हार्मोन्स और उसके एंटागोनिस्ट को। तो कौन से ऐसे हार्मोन हैं? तो इसमें दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो ड्रग है वो है टैमोक्सिफेन। अब टैमोक्सिफेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये समहाउ डाइथाइल स्टिल्बोस्टेरॉल के न्यूक्लियस से मिलता जुलता है। तो इसमें बीच सबसे पहले इसमें मौजूद है, इसके स्ट्रक्चर में एक इथिलीन मोइटी है लाइक दिस। इथिलीन मोइटी के एक तरफ प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप, दूसरे कार्बन पे मौजूद है एक फिनाइल न्यूक्लियस, इधर इसके मौजूद है इस वाले कार्बन पे अगेन एक फिनाइल न्यूक्लियस, और यहाँ वाला जो चौथा कार्बन है इस कार्बन पे इसमें है अगेन एक फिनाइल न्यूक्लियस, बट दिस फिनाइल न्यूक्लियस इज अगेन linked with oxygen, and this oxygen is again connected with ethylene group, and ethylene group is finally associated with nitrogen, and on this nitrogen there are two methyl groups. This is your tamoxifen, and this tamoxifen is an estrogen antagonist. Estrogen antagonist, and this estrogen antagonist is used in the treatment of estrogen dependent breast cancer. This is used in the treatment of what? Estrogen dependent breast cancer, means the cancer, breast cancer which is associated with the estrogen hormone, उसके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस टैमोक्सिफेन का जो ई आइसोमर है, ई आइसोमर, दिस ई आइसोमर इज ओनली एक्ट एज ए ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट। ये क्या है? ई आइसोमर ही है, और इसका जेड आइसोमर जो है वो ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट की तरह काम नहीं करता है। तो ये बात हुई हमारी टैमोक्सिफेन की। हार्मोन्स में एक और हार्मोन है जिसका इस्तेमाल हम प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होता है उसके कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, वो है फ्लूटामाइड। और आपको पता होगा प्रोस्टेट कैंसर मेल ऑर्गेनिज्म में सबसे कॉमन कैंसर होता है ओल्ड एज के अंदर। तो फ्लूटामाइड जो है उस कैंसर को ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, और ये है नॉन स्टेरॉइडल एंटी एंड्रोजन। ये क्या है? फ्लूटामाइड। दिस इज नॉन स्टेरॉइडल
एंटी एंड्रोजन, और इसको कभी कभी एंटी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहा जाता है, एंटी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जनरली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, चूँकि इसके नाम में फ्लू मीन्स कहीं ना कहीं इसमें फ्लोरीन एटम मौजूद है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है एक अमीन मोइटी, और इस अमीन मोइटी पे है कार्बोनाइल ग्रुप। तो आप समझ गए होंगे ये हो गया है एक अमाइड लिंकेज, और अमाइड लिंकेज पे यहाँ पर मौजूद है CH3 और यहाँ पर है CH3, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल मोइटी। और इस रिंग के अंदर चूँकि इसमें इसके नाम में फ्लू है, तो ये यहाँ पर एक ट्राईफ्लोरीन एटम मौजूद हैं, और इस ट्राईफ्लोरीन एटम वाले कार्बन के नीचे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फ्लूटामाइड। तो ये हुए हमारे हार्मोन्स और हार्मोन्स एंटागोनिस्ट क्लास के दो बेस्ट एग्जाम्पल जो कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हम अगली क्लास की। नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 5। इसमें आते हैं हमारे प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे कई सारे प्लांट प्रोडक्ट है जिनको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, मगर उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। मैं उनको बाद में अलग अलग क्लास के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा। यहाँ सिर्फ हम उनके नाम जानेंगे, कौन कौन से ऐसे प्लांट प्रोडक्ट हैं जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं। सबसे पहला विंका अल्केलॉइड्स। विंका अल्केलॉइड्स एक विंका प्लांट से निकाले जाते हैं, और इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं जनरली जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। ये हुए आपके विंका अल्केलाइड्स। तो दूसरी क्लास इसमें आती हैं, क्लास नंबर 2, वो हैं कैम्पटोथेसिन डेरिवेटिव। कैम्पटोथेसिन डेरिवेटिव में जो एग्जाम्पल आते हैं वो हैं कैम्पटोथेसिन, नेक्स्ट है इरिनोटेकान, इसके बाद हैं टोपोटेकान। नाउ इसके बाद एक और क्लास हैं, सब क्लास नंबर 3 प्लांट प्रोडक्ट के अंदर, जिनका इस्तेमाल हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। वो क्लास नंबर जो 3 हैं वो हैं एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, और इसमें एग्जाम्पल आता है आपका एटोपोसाइट एंड टेनिपोसाइट। एटोपोसाइट एंड टेनोपोसाइट। इसके बाद चौथा क्लास आता है, सब क्लास नंबर 4, वो है टैक्सोल डेरिवेटिव। इसमें एग्जाम्पल आता है पेक्लीटेक्सेल और डोसीटेक्सेल। पेक्लीटेक्सेल एंड डोसीटेक्सेल, ये होते हैं हमारे प्लांट प्रोडक्ट जिनको कि हम कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। अब आती हैं लास्ट एंड फाइनल क्लास ऑफ योर
एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्लास नंबर 6। और क्लास नंबर 6 में आते हैं मिससेलेनियस एजेंट। और मिससेलेनियस एजेंट में दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला है सिसप्लैटिन। सिसप्लैटिन प्लेटिनियम डेरिवेटिव। सिसप्लैटिन, इसमें प्लेटिन के दो तरफ हैं, अमोनियम आयन, और दो तरफ हैं इसमें क्लोरीन। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इसमें एक और, हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया। सो हाइड्रोक्सी यूरिया, यूरिया इज नथिंग बट NH, डबल बॉन्ड O, NH2, ये हो गया आपका यूरिया। और इसमें एक नाइट्रोजन पे आप अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हाइड्रोक्सी यूरिया। सो यहाँ आपका फिनिश होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।